So, guys, let's start with today's lecture based on acid, bases, and salts. So, what is acids? So, what are acids basically? Acids are substances which give H plus ions, or when they are dissolved in water, they form hydronium ion H3O plus ion as their only positively charged ion. Okay, so these all the compounds which give basically or has H plus are defined as acids. Okay. There is also another factor for defining them as acid, that is pH level, which will be discussed later on. But अभी के लिए इतना ही है. फिर classification of acids. Acids are classified as organic acids and inorganic acids. Organic acids are acids which are derived from plants and animal sources, whereas inorganic acids are acids which do not have any carbon or hydrogen compound. Basically, they are mineral acids except for carbonic acid. Only carbonic acid is the acid containing carbon which is considered as an inorganic acid. Okay, so mostly the inorganic acids are strong acids which ionize completely, whereas the organic acids are weak acids which do not ionize completely. Hence, they are also used as weak electrolytes and they are used as strong electrolytes. So, depending upon the molecular composition, they are also derived or into two types: oxyacids and hydroacids. So, basically, oxyacids are those which have oxygen, acids containing hydrogen, oxygen, and other elements. For example, nitric acid, sulfuric acid, they have HN3, H2SO4, both hydrogen and oxygen are called as oxyacids. And then acids containing hydrogen and a non-metallic element but not oxygen. So basically जो भी एसिड में ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सी एसिड्स होता है, जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता वो हाइड्रो एसिड में आता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, आयोडिक. ओके, फॉर एग्जाम्पल. देन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब क्या कि अगर मैं वाटर में डालूँ, फॉर एग्जांपल मैं 100 ml वाटर में 10 ग्राम एसिड डालता हूँ, तो वो पूरा का पूरा 10 ग्राम एसिड इज डिसोशिएटिंग इन H प्लस एंड Cl माइनस. फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl डालता हूँ, तो अगर वो पूरा का पूरा 10 ग्राम अगर H प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा. और फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और एसिड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड लेता हूँ विच इज CH3COOH, तो वाटर में डालने के बाद अगर वो इनकम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, मतलब अगर मैं 10 ग्राम्स ऑफ एसिड डाल रहा हूँ 100 ml वाटर में, लेकिन out of that 10 grams only 3 to 4 grams H plus and CH3COO minus is getting dissociated, rest 7 ग्राम एसिड वैसे का वैसे ही प्रेजेंट है सोल्यूशन में, तो मेरा वो एसिड का यूज ही नहीं हुआ ना. वो एसिड डिसोशिएट होगा तो ही वो एसिडिक प्रॉपर्टी देगा. ओके, तो 10 ग्राम के अंदर सिर्फ 3 ग्राम ऑफ एसिड इज गिविंग एसिडिक प्रॉपर्टी, तो वो हो गया एक वीक एसिड. ओके, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ एसिड. वो दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो होते हैं कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट. कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड तब होता है जब मैं 100 ml वाटर में समझो 90 ml एसिड ऐड कर दो, तो इट विल हैव मोर एसिडिक फ्लेवर इन इट. एसिड का फ्लेवर ज़्यादा होगा या अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा है तो वो कॉन्सनट्रेटेड एसिड हो गया. और उसी के एग्जांपल में अगर मैं 100 ml वाटर में सिर्फ 10 ml एसिड ऐड करता हूँ, सो एज कम्पेयर टू वो 90 ml एसिड वाला सोल्यूशन, मेरा जो 10 ml वाला एसिड सोल्यूशन है वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया. सो ये which I was talking, depending upon the concentration. Concentrated which has high amount of acid, dilute which have less amount of acid. Okay, weak acid में और strong acid में you should ideally remember two examples. Strong acid HCl, H2SO4, HNO3. HNO3 is the strongest acid. Then acetic acid, carbonic acid, they are considered as weak acid because firstly most commonly they dissociate incompletely. Okay, and secondly they have a high pH value. तो pH वैल्यू पर हम आएंगे आगे.
Then depending upon basicity of acids, so what is basicity of acids? तो क्या होता है ना, अगर एक कंपाउंड हम लेते हैं फॉर एग्जांपल HCl, तो HCl डिसोशिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में। तो जो भी कंपाउंड का पॉजिटिव रेडिकल होता है उसे हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और जो कंपाउंड का नेगेटिव रेडिकल होता है हम उसे एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। सो एसिड्स क्या, एसिड्स के मेन प्रॉपर्टी क्या है कि वो H प्लस देंगे। सो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन वो कितने H प्लस देते हैं उन्हें उनकी बेसिसिटी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अगर एक एसिड एक H प्लस आयन देता है डिसोशिएट होने के बाद, तो दैट इज अ मोनोबेसिक एसिड। अगर एक एसिड 2 H प्लस आयन देता है तो दैट इज अ डाइबेसिक एसिड। If an acid ionizes and give 3H plus ion, it is a tribasic acid. Okay. So जो मोनोबेसिक होगा वो एक ही स्टेप में आयनाइज होगा, एक ही बार में वो H प्लस दे देगा, ठीक है ऐसे। जो भी डाइबेसिक होगा जैसे NaOH प्लस H2SO4 में करते हो, सो फर्स्ट इट कैन फॉर्म NaHSO4, तो उसमें से एक ही जो H है वो इधर आया है इसलिए, एंड देन इट विल लूज इट अदर H फॉर्मिंग Na2SO4। तो जो भी मोनोबेसिक एसिड होते हैं वो एक स्टेप में डिसोशिएट होते हैं, जो भी डाइबेसिक एसिड होते हैं वो 2 स्टेप में डिसोशिएट होते हैं, जो भी ट्राइबेसिक एसिड होते हैं वो 3 स्टेप में डिसोशिएट होते हैं। तो ट्राइबेसिक एसिड के एग्जांपल याद रखो H3PO4, H3PO3, ओके, फॉस्फोरिक एसिड। देन डाइबेसिक आर H2SO4, H2CO3, मोनोबेसिक आर HCl, HNO3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ओके कि अरेंज, तुम लोगों को 3-4 एसिड के एग्जाम्पल देगी और बोलेगी कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ हाउ विच एसिड विल डिसोशिएट और विच एसिड, हाँ विच एसिड विल डिसोशिएट फास्टर, ऐसे। फिर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक जो type of acid depending upon the basicity is an important topic for a board exams. Next is preparation of acids. So how are acids prepared? So कुछ general example है या general reactions है जिनमें acid release होता है. So these are the reaction. First is the most common reaction. Hydrogen plus any non-metal gives a acid which is basically an hydride acid because it has hydrogen and not oxygen. So hydrogen plus fluorine gives HCl, hydrogen plus iodine gives Hi, hydrogen plus bromine gives HBr, etc. etc. Next are any acidic oxides. So basically acidic oxides. So what are acidic oxides and what are basic oxides? Acidic oxides are oxides of non-metal. Okay, whenever you have a non-metal with oxygen, they are acidic oxides. और बेसिक ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्साइड ऑफ मेटल। सो SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3। अगर मैं SO2 की जगह SO3 ले लूँगा तो H2SO4 बन जाएगा। वही अगर मैं CO2 ले रहा हूँ तो H2CO3। ओके, देन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो वेन एवर यू हैव टू प्रिपेयर एन एसिड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वाइसा वर्सा होना चाहिए। मतलब कि अगर तुम लोग को नॉन वोलेटाइल एसिड बनाना है तो एक नॉन वोलेटाइल एसिड लेना पड़ेगा। ओके, मतलब कि एक एसिड दूसरे आयन को डिस्प्लेस करके दूसरा एसिड बना रहा है। एग्जाम्पल से समझो, दिस इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन जो बहुत सारे चैप्टर्स में रिपीट हो रहा है। यहाँ पर है, HCl में है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ HCl का लेबोरेटरी रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू रिमेंबर। तो देखो, हम इसमें एक सॉल्ट लेंगे, एक लेस वोलेटाइल या फिर एक नॉन वोलेटाइल एसिड लेंगे। तो ये जो नॉन वोलेटाइल एसिड होगा ये सॉल्ट में से अनायन को डिस्प्लेस करेगा और फिर सॉल्ट और एक वोलेटाइल एसिड प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट की जगह में NaCl ले लेता हूँ, नॉन वोलेटाइल एसिड की जगह H2SO4। तो इसमें का जो सल्फेट आयन है दिस विल गेट एक्सचेंज विद द क्लोरीन आयन। ओके,
तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, तो ये HCl बन जाएगा। याद रखना कि अगर इसमें मैं टेम्परेचर लेस देन 200 रखता हूँ तो NaHSO4 फॉर्म होगा। इफ़ आई कीप द टेम्परेचर मोर देन 200 इट विल फॉर्म Na2SO4 विच इज़ नॉट सूटेबल। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है और एक। नेक्स्ट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स को वेन एवर ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग अ ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन होते हैं? जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में वी हैव मोर ऑक्सीजन, ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। ओके, सो सल्फर व्हेन रिएक्ट्स विद HNO3 इट विल फॉर्म सल्फरिक एसिड विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ऐसे रिमेंबर याद रखने के लिए इजी होगा। हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन गिव्स वाटर। मतलब बेसिकली तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ऑक्सीडाइज करो, तो रिएक्शन याद रखना यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है कि प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म हो गए। तो कैसे याद रखना कि जो भी इसमें आयन्स है सबके साथ ऑक्सीजन मिला लो। ओके, और तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ एसिड है तो एक एसिड तो बनेगा ही, तो यार जो भी तुम्हारा नॉन मेटल होगा उसका एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर जो भी दूसरे एलिमेंट्स है उनके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो सल्फर के साथ है तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन डेट इज वाटर, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन डेट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन होगा कि NO2 जब भी रिलीज होता है तो ब्राउन गैस रिलीज होता है। ठीक है, phosphorus with HNO3 gives phosphoric acid, water, NO2, same trick to remember। फिर physical properties of acid, acids are sour in taste, mineral acids are corrosive in nature। तो मतलब तुम्हारे स्किन तुम्हारे बॉडी को डैमेज कर सकता है, corrosive in nature है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिकली जो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो भी इनऑर्गेनिक एसिड्स है दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स है दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देन कम्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की एसिड्स रिएक्ट कैसे करते हैं। ओके, सो एनी एसिड प्लस मेटल गिव्स उसका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये तो कॉमन रिएक्शन है, हर जगह आता है। ठीक है, ये HCl में भी है। और ऑब्जर्वेशन क्या होगा जब भी H2 रिलीज होगा? ब्रिक एफरवेसेंस ऑफ कलरलेस गैस ऑब्जर्व्ड व्हिच इज एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर विद अ पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन जब भी रिलीज होता है तो पॉप साउंड वाला ऑब्जर्वेशन आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो कोई भी बेस, ये बेसिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट और वाटर। ठीक है, देन अगर ये मेरा बेस कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट होगा तो सॉल्ट वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। सेम अगर सल्फाइट या सल्फेट या बाई सल्फाइड फॉर एग्जाम्पल होगा तो मेरा सॉल्ट वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो ये एग्जांपल्स एक बार देख लो। ठीक है, और फिर ऑब्जर्वेशन याद रखना कि जब भी CO2 रिलीज होगा, CO2 हमेशा याद रखना कि इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की एंड हैव नो इफेक्ट ऑन पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन और पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। बेसिकली बोथ द सोल्यूशन शो आर यूज्ड फॉर सिमिलर पर्पस, इसलिए दोनों सोल्यूशन का नाम याद किया है। और जब भी SO2 रिलीज होगा तो कलरलेस गैस इज इवॉल्व विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो SO2 भी लाइम वाटर मिल्की करता है एंड टर्न्स। इसमें ये एक की ऑब्जर्वेशन रहता को, SO2 जो है दैट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन फ्रॉम पिंक और पर्पल टू कलरलेस। तो जो भी कलर होता है सोल्यूशन का वो फेड हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ओके, जब भी SO2 होगा, और CO2 होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये दो ऑब्जर्वेशन याद रखना। फिर सल्फाइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, सो FeS प्लस HCl। बेसिकली ये सेम रिएक्शन है, जब भी कोई हम सल्फाइड यूज़ करेंगे तो सॉल्ट तो बनेगा ही नॉर्मली, Fe और Cl2 यहाँ से दो आयन, जैसे यहाँ पर है तो Zn और Cl बन जाएगा, ZnCl2, और जो भी H और S है वो कंबाइन होकर हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म करेंगे। ओके, और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो भी ऑब्जर्वेशन है हैज़ अ स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। और अ कलरलेस गैस इज इवॉल्व विच टर्न्स अ मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। तो लेड एसिडेटेड पेपर सिल्वरी ब्लैक हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन हाइड्रोजन सल्फाइड में हमेशा याद रखना। ओके, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए भी पूछ सकते हैं।
फिर यूजेस ऑफ एसिड्स वगैरह एक एक बार रीड कर लेना। और अगर ये नोट्स चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में लिख देना, आई विल गेट यू थ्रू इट। ओके, फिर आ जाते हैं